Hello my dear student, good morning to all of you. Myself Amit Tripathi, your physics teacher. Guys, you are welcome in my class. The today topic is the acceleration. Before this topic, I want to remind you the previous topic which you all already learned in previous classes, that is speed, velocity, uniform motion and non-uniform motion. The concept of acceleration will seen in the non-uniform motion. Then I want to once again define the definition of uniform motion. The definition of uniform motion is if the object will cover equal distance in equal interval of time, then the motion of the object will be said to be uniform motion. Okay, and if the object will cover unequal distance in equal interval of time, this type of motion is known as the non-uniform motion, and this non-uniform motion gives the concept of accelerations. Non-uniform motion, the example, the motion of the car in the crowded area. Okay, अगर कोई भी आपकी कार है, जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आप गए तो वहाँ पे अगर क्राउडेड फील्ड है तो क्राउडेड फील्ड अगर है तो आपकी कार की स्पीड, आपकी बाइक की स्पीड इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी. लेस क्राउडेड है, आप इस स्पीड को इंक्रीज करेंगे. क्राउडेड ज़्यादा वहाँ पे है तो आप स्पीड को क्या करेंगे, लो करेंगे. दैट मीन्स यू विल चेंज योर स्पीड इन सम इंटरवल ऑफ टाइम. That change in speed will gives the concept that is known as the acceleration. So here we defined the acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called the acceleration. What is the meaning of rate of change of velocity? That means if you want to define in mathematical form, so you represent the acceleration. It is represented by small a. This is equal to change in speed or change in velocity, upon time. Change in velocity, acceleration is represented by small a. Change in velocity, suppose that this is the object and it will start your motion with a speed, that speed is 5 meter per second. This is the object A and it will start your motion with a speed that is the 5 meter per second. After t interval of time, that means after 10 seconds, we observe its speed will be changed. That means the same object, that is A, after 10 seconds its speed is 10 meter पर सेकेंड. क्लियर. फर्स्ट इसने मोशन अपना स्टार्ट किया कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी और इट्स स्पीड विल बी इंक्रीजेस, दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द it will start your motion, that speed or that velocity is known as the initial velocity. It is represented by small u, and after t interval of time, the velocity of the object or the speed of the object is known as the final velocity, and it is represented by capital B. ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से अपने मोशन को स्टार्ट करेगा, दैट स्पीड और दैट वेलोसिटी इज नोन एज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू. ओके, एंड आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम, जब आपने फिर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड को ऑब्जर्व किया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फाइनल वेलोसिटी और फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v.
देन हाउ यू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, यू यहाँ पे फॉर्मूले में आपको चाहिए क्या, चेंज इन वेलोसिटी, देन हाउ यू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स you will subtract the initial velocity from the final velocity. That's why this is equal to the final velocity minus initial velocity, okay, upon time. And in symbolic representation, final velocity is represented by small v minus initial velocity is represented by small u upon में time is represented by small t and acceleration is represented by small a. This is the formula for the acceleration. Okay, acceleration a is equal to the change in velocity, that means final velocity minus initial velocity upon में time. Okay, then if anyone asks to you what is the defined acceleration or what is the acceleration, you simply told him the rate of change of velocity is known as the acceleration. Acceleration is represented by small a, this is equal to the final velocity minus initial velocity upon में time. What is the final velocity and what is the initial velocity? Initial velocity is that velocity through which the object will start your motion, and final velocity is that velocity after the t interval of time which you will observe the velocity of the object. Okay guys, then we find what is the unit of the acceleration. This is the formula for acceleration. Then what is the unit? The unit of acceleration is, यूनिट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स आप इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. यूनिट ऑफ द वेलोसिटी यू ऑल आर नो दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड यूनिट ऑफ द टाइम दैट इज आल्सो ए सेकेंड. देन यू सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू मीटर अपॉन में सेकेंड इनटू सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मीटर per second square, that means the unit is meter per second square or it is represented by m s की power minus 2. This is the unit of the acceleration. Okay, next point, it is a vector quantity. It is a vector quantity. This is the vector quantity. Clear guys? Next point, it can be positive, negative or zero. This is the important. It can be positive, negative or zero. At which condition the acceleration is positive, at which condition the acceleration is negative, and at which condition the acceleration is zero. We discuss here, if final velocity is greater than initial velocity, final velocity is greater than initial velocity. अब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, this magnitude is greater than this magnitude, तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी आफ्टर द सब्सट्रैक्शन दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू. दैट मीन्स दिस इज implies that acceleration is become पॉजिटिव, मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपकी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होगी. दैट मीन्स अगर u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो वैल्यू आपको साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. तो इस कंडीशन में टाइम जो भी होगा उससे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इंक्रीजेज दैट मीन्स देयर एट दैट प्लेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव.
ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से इंक्रीज कर रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ the final velocity is less than the initial velocity, this implies that acceleration is negative. How? Suppose that अभी इसी वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपने ऑब्जर्व किया फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपान में t, दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू 5 माइनस 10 अपान में t की वैल्यू कितना 2, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 10। देखिए 5 में से आपको माइनस करना किसको, 10 को, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5 विद नेगेटिव साइन। क्लियर। अपान में 2, वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड 2.5 है, बट उसके साथ साइन कौन सा यूज हुआ है, माइनस। दैट मीन्स दिस इन दिस कंडीशन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। किस केस में मिल रहा है, व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका मोशन करना स्टार्ट किया है, आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम if its velocity will be decreases, that means at that place the acceleration is negative. This negative acceleration is also known as the retardation. This is also known as the retardation or negative acceleration or deceleration. Okay, and third one is if the final velocity is equal to the initial velocity. In this case एक्सेलरेशन इज 0, मीन्स v की वैल्यू u के इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज योर वेलोसिटी, विल नॉट चेंज योर स्पीड। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एट दिस कंडीशन द एक्सेलरेशन इज 0। क्लियर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस केस में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एंड इन विच कंडीशन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड और इन विच कंडीशन द एक्सेलरेशन इज 0। दीज आर द कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द पॉजिटिव नेगेटिव आर 0। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, how you define the uniform acceleration? You all are know uniform motion and non-uniform motion. In uniform motion, you remind the definition of uniform motion. If the object will cover equal distance in equal interval of time, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वहाँ पे जो उसका मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ द ऑब्जेक्ट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल दोनों में सेम है, बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें की वैल्यू में क्या है, चेंजिंग है। क्लियर। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली आप यहाँ पे भी वैसे ही डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज सेड टू बी परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी विल बी चेंज इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है वो अगर सेम है, इक्वल है, दैट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। एंड सेकेंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म acceleration. Clear. Non-uniform acceleration, a object will have non-uniform acceleration if the velocity of the object will change in unequal magnitude within equal interval of time. The
acceleration is said to be non-uniform acceleration. Clear? इंटरवल ऑफ टाइम सेम होगा और वेलोसिटी आपकी जो चेंज हो रही है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा. एट दिस कंडीशन यू कैन से द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म रेट. क्लियर गाइस? तो ये था एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट. अब इससे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं. Example 8.4 from your book. Example 8.4. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Okay? 2 केसेस आपके हैं. एक तो राहुल पैडलिंग कर रहा है और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को वो अटेन्स करता है इन 30 सेकेंड में और स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन. तो ये है एग्जाम्पल 8.4. ओके. इन फर्स्ट केस इनिशियल स्पीड ऑफ द राहुल u is equal to 0 meter per second. Why? Because the Rahul will start your motion from a stationary position. Stationary position means rest position में था और rest position में उसकी velocity क्या होगी, 0 meter per second होगी. It will attains a velocity that is equal to 6 meter per second within a interval of time that is 30 second. Clear? In this case, what is the acceleration? ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर? एक्सेलरेशन फार्मूला यू ऑल आर नो. a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v दैट इज 6 माइनस वैल्यू ऑफ u दैट इज 0 अपॉन में 30. दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन में 30. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 is equal to 0.2 meter per second square. This is the acceleration. ओके. ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन हो गया. सेकेंड केस it will apply a brake. Question है then he apply brakes such that the velocity of a bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second. तो अभी सेकेंड केस में जब उसने ब्रेक को अप्लाई किया उस केस में उसकी जो इनिशियल स्पेस कंसिडर होगी वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक its velocity will become that is the 4 meter per second and within a time interval that is 5 second. In this case acceleration a is equal to change in velocity upon my time. This is equal to change in velocity final 4 minus initial velocity that is 6 upon time this is 5 is equal to minus times of 2 upon में 5. This is equal to minus times of 0.4 meter per second square. Here in your answer this is the negative sign. This negative sign will indicate the object have retardation or negative acceleration or deceleration. Clear? देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, फाइनल वेलोसिटी से. तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी से तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा. और यहाँ देखिए 0 से इंक्रीज करके कहाँ पहुँचा है, 6. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिला है, पॉजिटिव. और अगर इनिशियल और फाइनल दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 103 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर्स टू 60 किलोमीटर पर आवर्स इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ओके, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर्स, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, इन 5 सेकेंड टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देन एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान में t। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, स्पीड यहाँ पे दी गई है किलोमीटर पर आवर्स में और टाइमिंग यहाँ दिया गया किसमें, सेकेंड में। तो फर्स्ट यू चेंज ऑल दीज यूनिट्स इन सेम, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर्स को भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ टाइम किस में है, आवर्स में है, तो इस सेकेंड को चेंज करेंगे आवर्स में, या आप इस आवर्स को चेंज करेंगे सेकेंड में। तो यहाँ पे अगर आवर्स को चेंज करेंगे सेकेंड में तो किलोमीटर को भी चेंज करना होगा आपको मीटर में, ठीक है। तो इस किलोमीटर पर आवर्स को आप आइदर यू चेंज इन मीटर पर सेकेंड और दिस टाइम यूनिट सेकेंड विल यू चेंज इन द आवर्स। ओके, तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं इस मीटर पर सेकेंड, सॉरी जो टाइमिंग यहाँ पे, सॉरी स्पीड ऑफ द बस दिया गया है किलोमीटर पर आवर्स, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज द 60 माइनस इनिशियल दैट इज द 80 अपान में टाइमिंग कितना है 5, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 20 अपान में 5। ये 20 किलोमीटर पर आवर्स आया है तो किलोमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपान आवर्स को चेंज करेंगे सेकेंड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60। 20 से 20 ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस 200 अपान में 5 इंटू 36। 5 से 200 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगी 40, दिस इज इक्वल टू माइनस 40 अपान में 36। 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 अपान में 9 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Train started from a railway station, that means जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन होगी वहाँ पे वो स्टॉप होगी, मीन्स रेस्ट पोजीशन में होगी। वहाँ से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, and it will attains the final velocity that is the 40 kilometer per hours. This is 40 kilometer per hours. Time t is equal to 10 minutes. Find the acceleration. a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए टाइमिंग इसमें दी गई है 10 मिनट्स, यूनिट यहाँ मिनट्स है और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, दैट मीन्स टाइम की यूनिट आवर्स में है। तो इस मिनट को हमें चेंज करना होगा आइदर इन आवर्स में और इस आवर्स को चेंज करिए सेकेंड में। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं आवर्स में, दिस इज इक्वल टू 10 अपान में 60 इज इक्वल टू 1 अपान में 6 आवर्स। ओके, देन एक्सीलरेशन फार्मूला यू ऑल आर नो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम, दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स 40 माइनस 0 अपान में टाइम 1 अपान में 6। क्लियर, इस पार्ट को आप सब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 40 अपान में 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। क्लियर, दिस इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 240 किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर। ओके, अब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 240 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान में 60 इंटू 60 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 240 इंटू 1000 अपान में 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 इंटू 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 24 अपान में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, ये 2, फिर ये हो जाएगा 3। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपान में 3 इंटू 3 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 3 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन 9 और 9 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 54, दिस इज इक्वल टू 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आंसर किलोमीटर पर आवर्स में है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। यहाँ हमने 60 का स्क्वायर कर रखा क्योंकि यहाँ पे आवर्स का स्क्वायर है, तो 1 आवर्स को चेंज करेंगे सेकंड में 60 इंटू 60 और नेक्स्ट आवर्स को फिर 60 इंटू 60, दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर हमने कर दिया। क्लियर गाइस? तो इस पे बेस्ड आप और भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।